comes in the surface. तो यहाँ कहीं डोंट वरी ये वाटर नहीं है, जैसे पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस में हमारे पानी का कुआं होता है, वैसे पेट्रोलियम निकालने के लिए ऑयल के कुएं भी लगाए जाते हैं जब हम एक्सेस अमाउंट में ऑयल नेचुरल, ठीक है। सो hello friends, welcome to the new video of our chapter coal and petroleum. Okay, so in this video we are going to discuss about the second term, and that is petroleum. Okay, petroleum means petroleum word is came from two words. The first is petra and oleum. Petra means what? That is rock. Petra means rock. Okay, a rock means you know already mountains and rocks kind of things, and oleum means oil. Okay, so it means that the oil which is came from rock or which is obtained from the rock, that oil is known as petroleum. Again, the oil which is obtained from the rock, the oil which is obtained from petra, that means rocks or mountains, that oil is known as petroleum. Okay, so ये नाम उस तरह से आया है. Now what is petroleum? Which oils are there in petroleum? So petrol and diesel are obtained from a natural resources called petroleum. So petrol and diesel हमको जहां से मिलते हैं, that is known as petroleum. Okay, so petroleum क्या है? That is nothing but petrol and diesel and that kind of oils are there and which are mixed in this liquid. Okay, I hope अब आपको समझ आया होगा that petrol and diesel are type of oils. वो एक टाइप के ऑयल ही हैं, ठीक है. पेट्रोल एंड डीजल आर काइंड ऑफ ऑयल्स. तो वो ऑयल्स जो हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम में से मिलते हैं. पेट्रोलियम में से बहुत सारी चीजें अलग होती हैं. इट्स अ मिक्सचर, इट्स काइंड ऑफ कोल टार. जैसे कोल टार था 200 सब्सटेंस का मिक्सचर था. सेम एज दैट petroleum is also a mixture of different substances. Okay, so now hope you understand that petroleum means petra plus oleum. Petra means rock and oleum means oil. Okay, so this is what petroleum is, and petrol and diesel we will get from petroleum. Petroleum is formed from organisms living in a sea. Okay, it's a different thing, little bit different. We had studied about coal. Okay, we had studied about coal, that how coal can form, how coal were formed. Okay, coal कैसे बनता था, we had studied. Now let's study about how petroleum formed. Okay, petroleum कैसे बनता है. So we already know that coal and petroleum and these fossil fuels are made from the dead bodies of living organisms, but petroleum is specifically made from the living organisms in a sea. मतलब under the sea aquatic animals are there, and that aquatic animals means the animals which are there, which are living in water. Aqua means water. So the animals which are living in water, underwater, are known as aquatic animals. Okay, and in the sea area, मतलब पानी के अंदर ही सी में जो भी एनिमल्स रहते होंगे, that all animals और उनके डेड बॉडीज में से हमको पेट्रोलियम मिलता है. हाउ? सो whenever, ध्यान से सुनना, ठीक है, whenever any aquatic animal or any sea animal died, the dead bodies of that animal will go in the bottom. Okay, वो dead bodies, जैसे कोई फिश है या कोई शार्क है, दे आर सी एनिमल्स. तो वो जब उनकी डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडीज कहाँ पे जाएगी? नीचे चली जाएगी. ओके, बॉटम में. और जैसे ही बॉटम में जाएगी, वहां पे नेचुरल प्रोसेसेस के कारण उसके ऊपर लेयर आ जाएगा, क्ले का, सैंड का जो लेयर आ जाएगा, ठीक है. धीरे धीरे वो अंदर जाती जाएंगी, एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मिलियन ईयर्स, वी कांट से सम टाइम, it's a million year process. Okay, so after lots of years, बहुत लंबे टाइम के बाद वो डेड बॉडीज कन्वर्ट होती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में. ओके, वो डेड बॉडीज किस में कन्वर्ट होती है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में.
नाउ चलो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बन गया. नाउ व्हाट इज नेचुरल गैस, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन. फॉर टुडे अंडरस्टैंड पेट्रोलियम. सो पेट्रोलियम बन गया. ओके, अब सर हमको छेक दरिया के नीचे जाना है पेट्रोल लेने, ये लोग वहां से निकालते होंगे. एक चीज मैं आपको याद करवाऊं. आपको पता है, एंड यू आर, आई नो यू आर एग्री विथ मी, that oil and water, if you are comparing these two liquids, oil will be heavier than water will be heavier than oil. water जो है वो oil से थोड़ा heavy है, इसीलिए जब आप water और oil को mix करते हो तो ऊपर oil float करता है, नीचे water होता है. ठीक है, ये हमने experiment किया हुआ है. So here also this applies. We know that petrol and diesel and petroleum, these all are oils. तो हमको ये भी पता है कि जब पेट्रोलियम बनेगा तो वो ऑब्वियसली वाटर के नीचे नहीं, वो तैरता तैरता वाटर के ऊपर आ जाएगा. ओके, और आपको पता है गैस तो इससे भी हल्का है, तो गैस तो सबसे ऊपर आ जाएगा. तो वैसे एट द फ्रॉम द बॉटम पेट्रोलियम कम्स आउट एंड स्लोली इट कम्स इन द सरफेस. तो ऊपर तैरने नहीं लगता, बट अलग अलग जगह पे पेट्रोलियम मिलता है. सबसे पहले यूएसए में मिला था, कुछ 1867 अराउंड मिला था, और उसके बाद आसाम में, गुजरात इंडिया में आसाम में हमको पेट्रोलियम मिला था. ठीक है, तो अलग अलग जगह पे पेट्रोलियम मिलता है. और कैसे मिलता है, माइनिंग करना पड़ता है, और मतलब जमीन को माइन करना पड़ता है, उसके बाद नीचे से पता चलता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम है. तो फिर वहां पे पेट्रोलियम को निकालने का पूरा सिस्टम लगाया जाता है. फिर पेट्रोलियम निकाल के आगे की प्रोसेस होती है. व्हाट इज दैट आगे की प्रोसेस, वी आर स्टडीइंग राइट नाउ, डोंट वरी. सो ये कुछ एक डेमो मैंने ड्रॉ किया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है. ठीक है, मैं समझाता हूँ ये क्या है. देखो ये एक रॉक है. ओके, और मतलब रोड आप बता सकते हो, या रॉक मतलब माउंटेन वाला रॉक, कोई भी समझ सकते हो. और रॉक के अंदर भी पूरा यही होगा, बट रॉक के अंदर कहीं ना कहीं, डोंट वरी, ये वाटर नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक पैटर्न बनाया है. ये पूरा रॉक है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको पता है रिवर्स जो है वो माउंटेन से ही निकलती है. तो रॉक के अंदर वाटर भी होता है, ये हमको पता है. तो वहां पे जो वाटर आता है, अगर उसमें से वो सी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ओशन से कनेक्टेड है, तो वहां से पेट्रोलियम फ्लो होता होता ऊपर आएगा कहीं ना कहीं, और ऐसे फ्लो होता होता वाटर नीचे रह जाता है. फिर पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस मैंने बताया, वो तो उससे भी हल्का है, तो वो सबसे ऊपर रहेगा. तो जब भी ह्यूमंस को पता चलता है that here is the source of petroleum and natural gas, they are putting their systems. Here is well. well मतलब कुआं, हमारे पानी का कुआं होता है, वैसे पेट्रोलियम निकालने के लिए ऑयल के कुएं भी लगाए जाते हैं. तो वो लोग लगाते हैं, जहां तक ऑयल का लेवल है वहां तक उसको ले जाते हैं, उसके पार्ट्स, और फिर उसको ऊपर खींचा जाता है धीरे धीरे. नेचुरल गैस को भी खींचा जाता है. देखो ये वाला है जो ऑयल की सरफेस तक गया, उसको भी ऊपर खींचा जाता है. तो दिस इज द वे वी आर absorbing, we are taking out the petroleums and natural gas जमीन के अंदर से. और प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम एक्सेस अमाउंट में ऑयल नेचुरल गैस निकालने को ट्राई करते हैं, ग्राउंड वाटर निकालने को ट्राई करते हैं. अब आप एक चीज समझो कि अगर ये ऑयल गैस एंड वाटर निकाल दिया जाए तो ये जगह तो खाली हो जाएगी. ओके, तो अगर ये ब्लैंक हो गई जगह, तो अगर इधर ये रॉक पे अगर कोई हैवी लोड आ जाता है तो क्या होगा, अंदर गिरेगा. और भूकंप ऐसे ही आते हैं. ठीक है, जब अर्थ के अंदर जो चीजें हैं वहां पे इनबैलेंस हो जाता है, तब ही भूकंप आते हैं. ठीक है, सो दिस इज द वे वी शुड टेक केयर ऑफ, कि हमको ध्यान रखना चाहिए, सर हम कहाँ पेट्रोलियम निकालने चाहते हैं. आई नो यू आर नॉट गोइंग टू टेक आउट पेट्रोलियम, बट यू शुड नो एट लीस्ट दैट दीज आर द वे वी कैन कंट्रोल दिस थिंग्स. ओके, तो मे बी इन फ्यूचर आप में से कोई भी शायद इस प्रोफेशन में जाता है. ठीक है, जियोलॉजी बोल सकते हैं इसको, या बहुत सारे नाम है इसके, उसमें कुछ जाते हैं कोई भी आप में से कोई.
तो इन फ्यूचर आप कोई अथॉरिटी पर्सन है तो यू कैन कंट्रोल दिस थिंग्स कि भाई हमको एक्सेस अमाउंट में नहीं निकालना है, नो डाउट जरूरत है, बट उस जरूरत के हिसाब से ही हमको उसका एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेट्रोलियम। नाउ एक और पेट्रोलियम निकल गया, और सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ पेट्रोल एंड डीजल नहीं, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है पेट्रोलियम ऑयल के अंदर और उसको डिफरेंट सेपरेट किया जाता है। सो वेन एवर यू आर सेपरेटिंग पेट्रोलियम ऑयल, ओके, जब भी आप पेट्रोलियम ऑयल को निकाल के उसको सेपरेट करते हो, उसके अंदर जो जो चीजें हैं उसको बोला जाता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, क्या? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और कहां पे किया जाता है? उस जगह को बोलते हैं रिफाइनरी। When you are separating the substance in petroleum, पेट्रोलियम के अंदर जो भी सब्सटेंस मिक्स है उसको अलग करते हो, जब आप सेपरेट करते हो, that means you are refining the petroleum. Okay, so पेट्रोलियम को रिफाइन करने से डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। Okay, constituent. What means by constituents? It is nothing but parts or substances. Okay, different substances मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? एक उसका लिस्ट है और उसका यूज क्या क्या है वो भी हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि गैस सिलेंडर होता है, हमारे घर में आता है जिससे हम खाना पकाते हैं। ओके, सो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड मतलब वो सिलेंडर के अंदर लिक्विड स्टेट में होता है और बाहर निकलते वो गैस बनता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये समझ लिया। उसका यूज क्या है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ सेकंड वन पेट्रोल। तो पेट्रोल हमको पता है, पेट्रोल का यूज क्या है? मोटर फ्यूल्स में, व्हीकल्स में। एविएशन फ्यूल, नाउ व्हाट इज एविएशन? एविएशन मींस एयरप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट्स, ये सारे जो भी पूरा फील्ड है उसके जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसका फ्यूल वहां पे भी पेट्रोल यूज होता है। फिर सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग, कपड़ों को ड्राई क्लीन किया जाता है, उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं पेट्रोल यूज होता है, सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट। थर्ड वन इज केरोसिन। नाउ केरोसिन भी हमको पेट्रोलियम से ही मिलता है। पेट्रोल डीजल तो समझ आता था, एलपीजी गैस भी वहां से मिलता है, पेट्रोल भी और केरोसिन भी वहीं से मिलता है। फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स, हमारा जो स्टोव होता है उसमें। फिर लैम्प्स, कई लैम्प्स ऐसे होते हैं जो केरोसिन से चलते हैं, वो पहले लैम्प आते थे, ठीक है, वो केरोसिन से चलते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो केरोसिन से चलती है। वो स्टोव भी आते थे, प्राइमस बोलते थे उसको, वो भी केरोसिन डाल के ही चलाया जाता था। आफ्टर दैट डीजल, डीजल से हम फेमिलियर हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर जो है उसको स्टार्ट करना है तो आपको डीजल डालना पड़ता है उसके अंदर। फ्यूल्स फॉर हैवी व्हीकल्स, जितने भी बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, क्रेन होती है, उन सब में यही डीजल यूज होता है, पेट्रोल वहां पे यूज नहीं होता। फिफ्थ नंबर एंड दैट इज लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे आप समझो कि कई बार क्या होता है कि कोई मैकेनिकल चीज है, जैसे हमारा फैन हो गया या फिर डोर है, दरवाजा है, तो कई बार दरवाजा खोलते बंद करते टाइम उसमें से आवाज आती है। ओके, फिर कहीं आपका झूला लगाया हुआ है आपके घर में, तो झूला जैसे ही खाते हो आवाज आती है, तो हम क्या करते हैं? वी आर पुटिंग ऑयल, जो उसका पाइप है वहां ऊपर, वहां पे उसको हम ऑयल डाल देते हैं तो वो आवाज बंद हो जाता है। तो दैट ऑयल इज नथिंग बट लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लुब्रिकेशन। तो वो ऑयल भी हमको पेट्रोलियम से ही मिलता है। सिक्स्थ वन इज पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या है? तो कैंडल्स बनाने में जो वैक्स यूज होता है और वैसलीन बनाने में, तो दे आर ऑल्सो केम फ्रॉम पेट्रोलियम। ओके, आप सोचो कि कहां से दरिया के बॉटम में से हमको पेट्रोलियम मिलता है और उसको हम वैसलीन लगाते हैं। इनडायरेक्टली सारी चीजें हमसे कनेक्टेड है। 7 बिट्यूमिन। What is bitumen? Bitumen is a type of coal. Okay, let me write it here. Type of coal.
ओके, ये एक टाइप का कोल है बिटुमिन, और वो कहाँ पे यूज होता है? पेंट्स में, पेंट्स बनाने में, पेंट्स करने में नहीं, पेंट्स बनाने में यूज होता है। एंड रोड सरफेसिंग, जो रोड बनते हैं उस टाइम पे रोड को सरफेस मतलब लेवल अप करने के लिए वहां पे बिट्यूमिन कोल का यूज होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पेट्रोलियम। उसकी हिस्ट्री भी हमने देख ली, हाउ वी गेट पेट्रोलियम वो भी देख लिया, एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड यूजेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, और उसके यूजेस, तो ये पूरा हमने आज के सेशन में देखा। आई होप आप साथ साथ में नोट्स बना रहे थे। ओके, और आपको समझ भी आ रहा है। टेक्स्ट बुक भी आपको एक बार रीड करनी चाहिए इन सब के लिए। ओके, और डोंट फॉरगेट टू अटेंड द क्विज विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। ओके, आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्विज अटेंड कर सकते हो, आपको लिंक वहां पे ही मिल जाएगा। सो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। आई थिंक सो पेट्रोलियम, इधर नेचुरल गैस भी मिल रहा था, तो नेक्स्ट टाइम हम नेचुरल गैस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अप टू दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, keep submitting your homework regularly, and bye bye.